Good morning, children. Now, welcome back again in our YouTube videos. I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Okay, now I want to just take a quick revision that what already we have done in the last 2 days. We had started our chapter number 14, that was wind and storm. Okay, and we have discussed what was the meaning of wind and what is wind and what is storm. Wind क्या होता है और storm क्या होता है. Okay, we had already discussed and the different aspects those who are aligning with these two topics. Now yesterday the topic which we have discussed, that was the uneven and even heating of the earth, that why our earth is getting heated. Means our earth is not getting equal sunlight, all the parts of the earth is not getting the equal sunlight. What was the reason? So I had told to you that the reason is the shape of earth. Okay, the shape of the earth is a sphere, and in the sphere there will be some part which will receive more sunlight as compared to the parts those who will receive less sunlight. So yesterday we have seen that the equator is the most hot place on the earth in all the seasons. चाहे मौसम कोई सा भी हो, इक्वेटर हमेशा ही बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा एज़ कम्पेयर टू द पोल्स. ठीक है बच्चों, बिकॉज ऑन द इक्वेटर द सनलाइट विल बी स्ट्रेट, बट ऑन द पोल्स द सनलाइट विल बी स्लैंटिंग. ओके, so now because of this uneven heating, the different wind patterns has been originated. Okay, the winds start blowing, sorry, the air start blowing, that is the wind. The wind will be generated. Okay, and generally the air will blow from poles towards the equator. Why we have discussed yesterday. Okay बच्चों, तो इसी विंड में देखो yesterday we have stopped here, कल हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया था. So the last line हमने जो पढ़ी थी कल, वो क्या था कि wind is closely related to the pressure of the air at a place. बिल्कुल सही बात है भाई. हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी गर्म इलाके होते हैं, मतलब अगर आप इक्वेटर और पोल्स की बात करो तो पोल्स का एटमॉस्फेयर ठंडा होगा और इक्वेटर का गर्म होगा. तो इक्वेटर पे गर्म होने की, इक्वेटर पे एटमॉस्फेयर गर्म होने की वजह से वहाँ की हवा का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी. और उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, मतलब अगर आप इसको ये बोलो कि वहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा. ऑन द इक्वेटर बिकॉज ऑफ हीट द एयर विल मूव अप, द एटमॉस्फेरिक एयर विल मूव अप, ड्यू टू विच the low pressure area will get generated nearby the equator. Due to this, the place where the air exists in a very high concentration, all the areas where the air pressure is maximum, that was poles. From there the air will start blowing, means the air will get converted into the wind and it will start traveling towards the poles, sorry, towards the equator. Okay, so what we have seen, that because of the difference in the air pressure in the two different areas, don't forget these two areas are on the earth. Equator is also on the earth and pole is also on the earth. On the same earth the wind has been generated. Why? Because of difference in the air pressure. Okay, the air pressure on the poles will be maximum and the air pressure on the equator will be minimum. Okay, so what we have studied yesterday, that the wind is closely related to the pressure of the air at a place. Let us see what air pressure is. So today we are going to study that what is air pressure. It is the phenomena. So today we are going to start our topic air pressure. Okay बच्चों, अब देखो ये जो एयर प्रेशर है, this air pressure is associated with the generation of wind. So now let's have a see what is it. First number, the pressure exerted by the air is called air pressure. वो प्रेशर जो एयर के थ्रू दिया जाता है उसको मैं क्या बोलूँगा? एयर प्रेशर. The air in the atmosphere exert pressure on every object and in all directions. Means the atmosphere which we are having, the atmosphere which we are having, in this atmosphere we are having the air.
This air exerts pressures on every object and in all directions, up, down, left and right, etc. The pressure exerted by the atmosphere depends on many factors. याद रखो बच्चों, हमारे ऊपर, we are living on the earth. On the earth, the air pressure is same, but where we are staying, it will play a very important role as far as the air pressure is concerned. That was only they are saying that the pressure exerted by the atmosphere depends on many factors. Now let's have a see what was these factors. For example, it depends on the height of a place. Okay, many times you all have listened that whenever we are moving towards the hills, high hills, then ultimately the bleeding will be start from our nostrils, okay, and from the ear. This was just because of the lower air pressure, okay, and also on the temperature. ओके बच्चों, सो जब कभी भी आप, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द प्लेस एंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर. देखो टेम्परेचर और हाइट पे डिपेंड करता है बच्चों. मान लो जैसे मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल बताया कि इक्वेटर पे जो प्रेशर, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, तो बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर द प्रेशर विल बी लेस. ऑन द पोल्स द टेम्परेचर इज़ वेरी लेस, दैट्स वाई द प्रेशर विल बी मोर. ठीक है, तो एयर प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, ये डिपेंड करता है हीट पे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. उसके अलावा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में कितना ऊपर हो एज़ कम्पेयर टू सी लेवल. सी लेवल के मुकाबले में आप कितना ऊपर जा रहे हो. ठीक है, जनरली प्लेसेस एट अ लोअर टेम्परेचर आर एट हाई प्रेशर. याद रखो, generally places at a lower temperature. The places at a lower temperature means what? Please try to remind. I had already given you the example of poles. On the poles we are having less temperature, so these poles are having the higher pressure than the places at a higher temperature. For example, equator. Air moves from an area of higher pressure to an area of lower pressure. एयर हमेशा ही हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है. ठीक है, दिस कॉजेज विंड, जिसकी वजह से विंड का जनरेशन होता है. बिल्कुल सही बात है. मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एयर का जो मूवमेंट है, वो एयर का मूवमेंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ होगा. ठीक है ना. द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब इसका उल्टा. द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. मूविंग एयर कॉज अ वेरिएशन इन द प्रेशर. मूविंग एयर मतलब जब एयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तब तो ठीक है, लेकिन जब एयर विंड में कन्वर्ट हो जाए और ये मूव करना शुरू कर दे, तब धीरे धीरे करके ये डिफरेंट टाइप्स के एयर प्रेशर्स और एयर प्रेशर से रिलेटेड कई तरह के एस्पेक्ट्स को टच करती है, और इसके टच करने की वजह से उनमें डिफरेंसेस आते ही हैं. ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये तो एयर प्रेशर था. अब एयर प्रेशर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, इसको हम एक बार देख लेते हैं. सो ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न ओवर द पेज. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. देखो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया है आपको, फैक्ट फाइल. एक मिनट, पेज टर्न करने से पहले इसको सुन लो. फैक्ट फाइल करके यहाँ पर एक दिया हुआ है. आई थिंक इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जब कभी भी हम अपने घर में वेंटिलेटर बनाते हैं, मतलब घर की हवा बाहर जाए और बाहर की फ्रेश हवा अंदर आए, तो वेंटिलेटर हम हमेशा ऊपर ही क्यों बनाते हैं? वाई वी आर नॉट मेकिंग इट एट डाउन साइड. ओके, विंडोज से तो हवाएं आती हैं, लेकिन जब कभी भी अंदर की हवा बाहर जाने की बात आती है तो हम उसके लिए हमेशा वेंटिलेटर को ओपन करते हैं. ठीक है, या फिर घरों में अगर आपने कभी भी एग्जॉस्ट देखा होगा तो एग्जॉस्ट हमेशा ऊपर लगाया जाता है, नीचे नहीं. और एयर कंडीशन भी हमेशा ऊपर लगाया जाता है, नीचे नहीं. ठीक है, अगर आप लोगों ने गीज़र देखा है, गीज़र जो पानी गर्म करता है, तो गीज़र के अंदर के जो रॉड होते हैं वो ऊपर कभी नहीं होते, वो हमेशा नीचे होते हैं. ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपको ये समझाने के लिए
कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल्स को आप हीट प्रोवाइड करते हो तो वो अपने साइज़ को बढ़ा देता है, और साइज़ के बढ़ने की वजह से उसका अपना वेट कम हो जाता है, और वेट कम होने की वजह से वो लाइट हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। और इसी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि एयर तो पहले से ही गैस है तो उसके पार्टिकल्स तो पहले से ही दूर दूर हैं, अब ये इक्वेटर और पोल्स के होने की वजह से इनके बीच की दूरियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो एयर जो पोल्स पे है वो हैवी हो जाती है, और वो एयर जो इक्वेटर पे है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है बच्चों। अ वेंटिलेटर इज़ a small window which is placed high up close to the ceiling of a room. It is very useful to have a ventilator in addition to a window because it helps in the proper ventilation of the room. Warm air in the room rises and goes out of the ventilator, and cool, fresh air rushes in from the window below to take its place. मीन्स ये जो विंडो आप लोग देख रहे हो, इस विंडो से ठंडी हवाएं अंदर आएंगी, और इस रूम की जो गर्म हवाएं थी, अब क्योंकि गर्म हवाएं कैसी होती हैं, हल्की होती हैं, दे आर लाइटर, दे विल ऑलवेज मूव अप। ओके, तो यहाँ की जो गर्म हवा थी वो ऊपर थी, लेकिन क्योंकि रूम में कोई हवा आ नहीं रही थी इसलिए मैंने अपनी विंडो को ओपन कर दिया, तो बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर आएगी, तो अंदर की जो गर्म हवा है, गर्म हवा कहाँ पे होगी, ऊपर होगी, तो ये जो गर्म हवा है वो ऑटोमेटिक इस वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगी, तो ये पूरा का पूरा जो मेरा रूम है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, नाउ प्लीज टर्न ओवर द पेज नंबर 215। ओके बच्चों, नाउ ऑन द पेज नंबर 215 वी आर हैविंग राइट नाउ वी आर हैविंग ऑन द पेज नंबर 215। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा टॉपिक है दैट वाज मूविंग एयर एंड द लिफ्ट। ऑल ऑफ यू प्लीज सी इट। देखो बच्चों, द नेम ऑफ द टॉपिक इज मूविंग एयर एंड द लिफ्ट। तो इस टॉपिक का नाम है कि भाई जो एयर का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट की वजह से एयर अपलिफ्टमेंट का फोर्स जनरेट करती हैं। भाई ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, किसी भी तरह के फोर्स को जनरेट करने के लिए हमें कुछ अलग से फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर जो मूविंग एयर है, मूविंग एयर एक तरह का अपलिफ्ट फोर्स जनरेट करती है। कैसे जनरेट करती है? ऑल ऑफ यू प्लीज सी द पिक्चर वेरी वेरी केयरफुली। इस पिक्चर को आप लोग एक बार देख लो, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, आप देख रहे हो कि ये बच्ची है, इसके हाथ में एक स्ट्रिप है, ओके, और ये स्ट्रिप के ऊपर बहुत तेज़ अपने माउथ से एयर को ब्लो करवा रही है। तो इसके माउथ से निकलने वाली जो एयर है वो इसके ऊपर से आ रही है। तो इस एयर के मूवमेंट की वजह से, अब क्योंकि यहाँ पर एयर पहले से थी, अब क्योंकि इस बच्ची ने उस एयर को अपने अंदर लेकर उसको विंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर तो एयर पहले से था, लेकिन इसने उस एयर को लेकर के उसको विंड में कन्वर्ट कर दिया। अब विंड में कन्वर्ट करने की वजह से इस स्ट्रिप के ऊपर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया और नीचे हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो गया। इससे क्या हुआ, अब आप जानते हो कि भाई लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में क्या होता है। हाई प्रेशर में क्या होगा कि जो हवा होगी, एयर, वो हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो इस स्ट्रिप के ऊपर का एटमॉस्फेयर कैसा है, यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, दैट वाज द लो प्रेशर, और नीचे कैसा होगा, हाई प्रेशर। ऊपर का लो प्रेशर क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एयर इनटू द विंड बाय दिस गर्ल, ठीक है। इसकी वजह से आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रिप है वो जगह जगह पे ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, लेकिन ये पूरी की पूरी स्ट्रिप एक बार में ऊपर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये स्ट्रिप आपस में जुड़ी हुई है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, दिस स्ट्रिप इज सॉलिड, और ये अपने पार्टिकल्स को छोड़ करके कहीं भी मूव नहीं कर सकता स्ट्रिप, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, इसके अलावा जब ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे हमारा कि मूविंग एयर एंड द लिफ्ट, तो मूविंग एयर और लिफ्ट में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक दिया है कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी आंधी तूफान आता है, वेन एवर देयर विल बी ए स्टॉर्म, तो कई लोगों की जो छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं,
मतलब छत आपने पक्की नहीं बनवाई थी, कच्ची बनवाई थी या लकड़ी की थी, ओके, तो वो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वेरी वेरी हाई फास्ट ब्लोइंग विंड दैट वाज द स्टॉर्म की वजह से फ्लो अवे हो जाती है। तो वो कैसे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में एक आउटलुक मैंने आप लोगों को दे दिया है कि मूविंग एयर एंड द लिफ्ट अल्टीमेटली में इसका मतलब क्या है और इस पूरे टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे हमारा कल। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।